first of all, we just wanted to congratulate you for winning Inspiring Award uh, and from the Rise Inside team. So today we are just going to discuss about the book, like how you become an author and what is your journey. So regarding that, we are just doing a conversation in this podcast. Okay. So Mhm. first of all, please introduce yourself to our readers and viewers who are watching this podcast, and we wanted to Mhm. know a little about you firstly. Well, hi, this is Dr. Priya Ganga. I am a medical doctor and I was a cognitive developmentalist and I'm a mental health specialist. So I stay in abroad, I didn't stay in India. And I did many things in my life, but I never thought to be an author. It was, something which I have never thought to publish. I used to write many things like poems and all, but I never thought of, publishing it. As I was, vivid reader, I used to read from reading was my thing. It's my child. So, anyways, things life gets moving on, and then this like particular this subject Q factor, it was as I told before also in many interviews that it was there for me, always there. So there was some incidences, some mysterious incidences started happening in my life. So Mm. I was drawn to this character, know more and more. So coincidentally, incidentally, I just got to know more and more. I had some people, but luckily, I got to know some people from Egypt and other places. So, I had many experiences about her, Cleopatra. So then, I thought of writing something, but of course, I'm a science student, not a writer. So, but of course, literature has always been my love. I love literature, although I'm a science student, but it doesn't mean that I don't love literature. And literature means anything, Hindi, English, Bengali, like my subject, anything. Like I love, all the world classics. Like from all over the world, I read these stories and novels and all. So at some point of time, I thought of writing something. Then, you know, um, I mean, fortunately, I got an offer from a company from Europe. They wanted to just make a fashion brand called Cleopatra the Diva. It's a luxury fashion brand. So, they wanted me to one of the partner. And it was like very special, not like, like today's brand, like you just pay for the brand, not like that. It's very expensive, like you have to gold silks and the, pure silks and all. So the theme was Cleopatra. So they wanted, something, some stories, imaginative stories behind this vessel. So, of course, as an ND, I was finding everywhere and it was not, sinking in. Nobody was able to just bring it up properly. So then when my husband told you right, you know many things about her, and there is something which others could not know. So then one fine evening, I was just sitting and I thought, okay, just let me write. If it is something is wrong, I will just not give it for for the brand. So anyways, finally I could wrote by God's grace, and it was a hit. It was very it became very famous, like from all over the world, like people from even the professors from Harvard, they just saw the stories. They didn't know that it was me behind it. They just told that who wrote this story? Who is this? We want to know more. It's so appealing. So we want to know more and more about this story. So that time, my husband, he always, supported me for, because I'm very submissive. I was happy about whatever I got in my life, but he always would push me towards my talent, that, you should do it like that. So he told me, one day that write about it. I said, oh, I'm a doctor. I should write something. If I write, I should write something about mental health, some brain function or something, because, I have my company, Prakriti Lab. So he said, there is nothing called, compulsory in life that, you have to do it because you are this and that. So then I thought, okay, let me just try, but I didn't know how to start. Okay. The story, because it's a story, how to start it. Where from, because in writing about Cleopatra, it takes a lot of effort. It's not like easy. Many people like from all over the world, they were writing about her. So anyway, one fine evening, I was just, out of my dilemma. I thought, okay, this is the time. I'm just going to write it. I took my phone and I started, typing in the WhatsApp because I thought, I'll just, do it. And when I met some characters like Silenus and Zai, the Silenus character when I met, I couldn't find his name because Okay. when I started writing that Egyptian tourist guide, so I was very, I didn't know how to, what name I should write. I didn't know much about Greek names and all. So then,
I found some ancient Greek names and I gave it name Stalanos and all. So it just started flowing. Then I asked my mother, I'm going to read a novel, like half, not half, even the starting of it. If you like it, just tell me. I will read, the other part of it. So when I said I read the first chapter I wrote, and she said, "What about the other chapter?" I said, "No, I'm the one who's writing it." So I just wanted to get this layman's this thing about the book, and I wanted to write it in a neutral English because English is spoken in all over the world in different tone, time, grammars, and everything is different because I've been all over the world. So I have friends from all over the world. Their accent is different. Way of speaking is different. Our Indian speaking is different. So I chose to speak in neutral accent. So I thought, the book is about Indian Egyptian lingo. So I should not make it Americanized, like to make it more. So I wanted the people to connect with it, without any that preconcept this notion that okay, we have to read it like this. So then, yeah, that's how it started. And when my best friend and my husband, they said, "Oh, it's coming really nice. What you are going to write next?" So that, pushed me towards it. And then I wrote even a song in the, I mean, it became also, he made it like, my husband, he gave it some, I think from AI, some music to the song, and it became really like everybody's liking it. So that's how it started. So, when I was writing, like I was finishing one chapter, I was thinking, my God, did I write it? Like it was such a shocking thing for me. आई वुड मैं माँ सरस्वती को मैं हमेशा थैंक बोल रही थी आपकी कृपा के बिना हो ही नहीं सकता था हो ही नहीं सकता था मतलब यू आर द वन हु हैज लाइक आपने दिया है मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आई डिड दिस एंड देन आई स्टार्टेड I have a lot of self dilemma. I cannot just even. I'm a mental health specialist, but I do have self dilemma. So I started before editing. So there was an American editor, and she wanted it to make it more Americanized. I said, "I'm sorry, it's my truth, my way of speaking. If I could, hire anyone, and from AI you can write a book also. But it is my language, my way of style. My style of telling my story. So I don't want anybody's interference in my story. So then they were very impressed. They said, it's going to be a movie next time. It's very nice and this and that. So of course, like that it happened. And still, I feel like I'm in, like I'm still in dream like that. So that's how it happened. Yeah, So now finally I'm an author. Yeah. ओके सो आपने बहुत लंबा अपना इंट्रोडक्शन दिया है और बहुत सारे बातें आपने बताई है ठीक है तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझना चाहेंगे क्योंकि यू हैव रिटन अ वेरी वंडरफुल बुक एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू ब्रेक डाउन स्टेप बाय स्टेप so that we can able to know more about the book okay सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले आपकी बुक में देखने को हमको मिलता है अबाउट द टाइटल ऑफ द बुक ओके तो सो आपका फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हैं कि किसी भी बुक को लिखने के लिए सबसे पहले तो बुक का टाइटल डिसाइड रहना चाहिए करके ठीक है सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट व्हाई यू चूज द टाइटल ऑफ द बुक ओके and also the cover of the book. These both are very unique, okay, and looks very attractive. Thank Okay, you. and they whenever अगर कोई readers देख रहा है फ्रंट कवर को then there are lot of things in mind. Okay, inside book में क्या हो सकता है करके ठीक है. So that's why it's creating a lot of curiosity to read the book also. Okay. So first of all हमको यही बताइए कि आपकी बुक का टाइटल then why you chose that cover should be in your book. Okay. Actually, when I titled, I didn't choose it before. While I was writing the book, I was writing it for the company. You understand? Like for the Cleopatra the Diva. So I thought I'm going to name it Cleopatra the Diva. But while I was writing the book, there were many hidden aspects came inside. The perceptual way of portraying the book was so different, so unique. Then I thought, Cleopatra Diva would be like not a nice name for the book. So at the end of the book, we decided to make it, more because the name is big. So I thought, to give something which will justify the book. If you read the book, you will understand why I did this name. Cleopatra, like the mysterious tale, some stories which were untold to the world, and some things in this world you don't even know. Like as a normal human being, you don't know what is going on. So there are some hidden aspects in the book that is making it like a, that's the reason I gave the name Mysterious Tale of a Secret Goddess. And she, as I told in my previous interview, she was like some scholars, they wrote about her that she was like reincarnation of goddess Isis herself. She had some superpowers and many things. So the story was
Some stories were really untold because I've been reading about Cleopatra for many years, but I didn't find like my time, my book. Mm. They had many things about Julius Caesar, Marcus Antony. I have not written anything about Marcus Antony in my book. Mm. Not even one word. I have not even chosen this word Marcus Antony. Mm. So like that, it's entirely different. It's like the perception of where you are seeing Cleopatra, watching Cleopatra as a neutral, a girl, okay, who is growing up, who is having this, identity crisis, who doesn't know who she is or who she was. It's just, she was going through a journey. And Silenus and Zai, Silenus is the only human from 2023. He time travels to ancient Egypt. So he sees Cleopatra with that human perspective, he's the only human, like from modern world, because Zai is not a human. So like that, the two love stories are going on. The love story about Cleopatra and her lover, and Zai and Stalin. So that's how this started. So this everybody knew that who she was, that power she possessed. So People would how have many questioned her. characters are there? So how many There are characters? actually the main. There are main characters are like four main characters. Actually Okay. five, I would say. There is one Sileno, who's a tourist guide from ancient Egypt. Sorry, modern Egypt. So Okay. he's a tour guide, 22-year-old. Okay. So he falls in love with a girl who looks like pretty, and she could not see. I mean, judge his nationality and all. So this girl is not a human. Okay. Then they, the time travel and see Cleopatra and her lover. They are the major character, and there is one divine like Scorpion King, Scorpion Priest. Yeah, he's another character. These five characters are always there, always together. So they are, and there are other characters as well, like that. So So they are the main one, and time travel is also there. In, if you see, if you read ancient history, even in Indian history, like I did not call it mythology. It sounds very, this very like stupid sound mythology. If you call your own dharma mythology, it doesn't justify नहीं करता है. yeah. जैसे आप पुष्पक रथ ये बोल, these are all time traveling, right? जो आज नासा जो सारी चीजें जो इन्वेंट कर रहे हैं, आप अमेरिका इन्वेंट करते तो आप उनको बोलते हाँ हाँ दिस हैपेंड, बट एक्चुअली आपके कंट्री में जो है आपको वो जानना जरूरी है. द सेम थिंग वाज विद एंशिएंट इजिप्ट आल्सो. तो टाइम ट्रैवल उधर था, मतलब जो आपका स्पेस ट्रैवलिंग एवरीथिंग. तो वो जो जैसे हम बोलते हैं ना स्वर्ग से आए हैं, तो उनका वो होता था कि सीरियस स्टार ए एंड बी होता है. सीरियस स्टार जो ए है वी कॉल इट लाइक एंशिएंट टाइम में डॉग स्टार बोला जाता था. हाँ. तो उनका कहना था कि दैट इज द स्टार, लाइक इट्स अ स्टार, लाइक जैसे हमारा सन है ना ऐसे स्टार है. उधर से मतलब जो देव देवी है वो आते थे इन अ लाइट बॉडी लाइक दैट. तो इट वाज रिटन. ऐसा नहीं कि क्योंकि कुछ पैपायरस स्क्रॉल जो एंशिएंट 5000 साल पहले मिला है, तो उसका कुछ चीजें जैसे तुतानखामुन के इसमें भी मिला हुआ है. पैपायरस स्क्रॉल मतलब एक जैसे हमारे यहाँ भी होता था ना, पत्ते में लिखा होता था देयर स्टोरी. तो वो जैसे पूरा तो मिला नहीं, हाफ ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम में भी है बहुत सारी चीजें. तो उसमें आप अगर पढ़ते हो हीरोग्लिफिक्स में, आपको बहुत सारी चीजें पता चलती एंड यू नीड टू रिसर्च. या दैट्स इट. सो जो तो वो स्टोरी एस्पेक्ट उसमें है. सो जो स्टोरी आपकी अभी बेस्ड है वो 2023 में है. am I right ना? 2023 में शुरू होता है 220 स्टोरी. 23 से स्टार्ट. देन दे गो टू 50 BC. या Okay, 50 BC का. Okay. And आपने बताया कि there are 4 characters. Okay. 5 main characters. Yeah. 5 main characters. Okay. So firstly we wanted to know specific about these characters, क्योंकि अगर हम लोग रीडर्स को बताएंगे कैरेक्टर्स की क्या है, उनके रिलेशंस क्या है. ठीक है, आपने बताया है. एक बार रिलेशन को और कैरेक्टर्स को एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए. ठीक है, तो दैट विल मोर गुड रीडर फॉर रीडर्स टू रीड द बुक. या देखिए ये क्या है, अनदर सीरीज इज कमिंग. ओके, दिस इज द पार्ट 1. तो मैं जितना बोल सकती हूँ मैं उतना ही बोल रही हूँ, क्योंकि उतना बोलने से उनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा. द थिंग इज हैपनिंग कि मैं बहुत, एज आई सेड, कि मुझे बहुत ज्यादा डिलेमा हो रहा था कि हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग. माय हस्बैंड इज जस्ट यू डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, यू जस्ट केयर अबाउट योरसेल्फ. बट फिर भी तो अभी तो मुझे रिव्यूज मिल रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक फ्रॉम यूएस टू माय यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स एंड एवरीवेयर. तो दे आर लाइक कह रहे कि हम बुक उठाने के बाद जस्ट कैनॉट लीव इट, एंड दे जस्ट वांट टू नो द, जिन्होंने बुक पूरा खत्म कर दिया उनको सेकंड पार्ट के लिए अभी दे आर वेटिंग फॉर इट. तो मुझे लगा कि दे आर ऑल ह्यूमंस, मे बी दे आर माय फ्रेंड्स आर सेइंग गुड थिंग. तो मैं एआई से पूछती हूँ व्हाट ऑफ माय बुक. सो मैंने एआई को बुक दिया एंड एआई सेड very good word, he was like analyzing, I mean he or she whatever, it was analyzing my book, and then said it has this, the language is very
लाइक स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी थिंकिंग इन, ऐसा लग रहा है कोई स्टोरी बोल रहा है। तो मैं बहुत एआई के जो उसमें ना मैं बहुत खुश हुई कि एटलीस्ट गिविंग वेरी गुड रिव्यू, बिकॉज आई टोल्ड यू हैव टू, जो मेरा वीकनेस है तो उसको भी आप हाईलाइट करो। सो इट डिडंट शो एनी वीकनेसेस। तो मुझे उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं चलो ठीक है, यू नो राइटर क्या होते हैं, मतलब आपको एक स्टोरी बोलने की क्षमता होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप लिटरेचर में बहुत अच्छे हैं, बट आप एक स्टोरी नहीं बोल सकते, फिर आप ऑथर नहीं बन सकते। ऑथर मतलब आपको बोलना है, मतलब यू नीड टू जस्ट लोग आपकी बात सुन रहे हैं। जी जैसे आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक दिस जो आपके डिटेक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, बट ब्योमकेश बख्शी समथिंग जो वो उनको लोग अभी भी बैठ के देखते हैं। तो दैट इज हाउ हाउ टू टेल अ स्टोरी स्टोरी। टेलिंग सो बहुत मुझे जब इम्पोर्टेंट। लगा या जब ये स्टोरी जो है ये कैरेक्टर्स में क्या है ना, जी स्टाइल एक कैरेक्टर है हम्म, जहाँ से इसमें कुछ हिडन एस्पेक्ट्स है जो बहुत, ये बुक एक चीज मैं पहले भी बोली थी, मैं आज भी मैं बोलूंगी। आई एम सॉरी मैं हिंदी लिटिल बिट जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दैट, आदत नहीं है ना बहुत। तो एनीवेज, तो वो ये हो रहा था कि एक जो आपके अगर बेसिक इंटेलिजेंस नहीं है, आप बुक पढ़ते हो, क्योंकि बुक क्या होता है ना, विजुअलाइजिंग की दुनिया में आप बुक पढ़ते हो तो आप इंटेलिजेंस क्रिएट करते हो। दैट आई एम सेइंग एज अ डॉक्टर। या तो ओके व्हेन यू रीड अ बुक आपका इमेजिनेशन क्रिएट होता है, आप सोचते हो कि ऐसा होता है ऐसा होता है। तो आपका ब्रेन का एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल डॉक्यूमेंटल कॉर्टेक्स ओके साइड, तो वो आपका एक्टिवेट होता रहता है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है बहुत एक्टिवेट होता रहता है कि आप देखते हो क्या हो रहा है क्या नहीं। सो जी दैट कहो कि अगर आपने बेसिक इंटेलिजेंस के लिए आपको ये बुक अच्छी लगेगी और आप पढ़ना चाहोगे, एंड उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है ना, क्योंकि आपको लगेगा सिंपल है बट उससे सिंपल नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड। आपको समझने के लिए ना बहुत सारी ये टाइम टू अंडरस्टैंड। हाँ बट इफ यू अंडरस्टैंड वन टाइम यू आर अपने वो जो पास होता है ना, टेस्ट होता है इंटेलिजेंस अपने पास ठीक है। सो दिस इज अबाउट स्टाइलिनोस का जो कैरेक्टर है, वो ये शुरू होता है कि एक पर्टिकुलर डे में नवंबर में वो मतलब टूरिस्ट गाइड होता है। वो एक्चुअली उसको मतलब इतने एक्सपीरियंस नहीं होता है, बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू बी अ टूरिस्ट गाइड विदाउट एनी दिस नॉलेज। तो उसको ये लगता है कि मतलब अलेक्जेंड्रिया में क्या होता है ना, पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ क्लियोपैट्रा। हम्म, सो लोग क्लियोपैट्रा के बारे में क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि क्या है, एंड ही डिडंट नो, ही जस्ट बेसिक एग्जैजरेटेड थिंग कि ऐसा ऐसा है। तो ही देन अंडरस्टूड कि नहीं ये ऐसे हो नहीं रहा है, मुझे नेक्स्ट डे मुझे पढ़ के आना पड़ेगा। देन ही मीट समवन जो उसको ये लगता है कि शी इज द मतलब शी इज क्लियोपैट्रा, मतलब एकदम सिमिलर स्ट्राइकिंग, क्योंकि क्लियोपैट्रा की कोई फोटो किसी ने देखा नहीं, जो कॉइन्स में उसमें आप जज नहीं कर सकते। हम्म, बट जो डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है, मतलब शी वॉज वेरी यूनिक, हर फेस वॉज वेरी यूनिक एंड ऑफकोर्स ब्यूटीफुल। क्योंकि कुछ लोग बोलते हो ब्लैक, तो ब्लैक कभी नहीं थी, शी वॉज अ टॉलेमी डायनेस्टी ना जो आपका ग्रीक से। तो उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं कि उसकी जो माँ थी, मतलब क्लियोपैट्रा की जो माँ थी, शी वॉज इंडियन दैट टाइम, इंडियन ओके सेठ की, इंडियन एक कोई साधु की बेटी थी। बिकॉज अलेक्जेंडर आए थे ना इंडिया में, तो हाँ लोग सोचते हैं कि अलेक्जेंडर इसलिए आए थे कि वो जीतने के लिए, जीतना होता उनके पास इतना था वो जीत जाते, बट वो उसके लिए नहीं आए थे, ही केम फॉर अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। तो वो चल रहा था इंडियन एंशिएंट इंडिया एंड एंशिएंट इजिप्ट के बीच में। हम्म, तो एंड उसके जो बाद में हम देखते हैं क्लियोपैट्रा का जो बेटा या होता है सीजरियन, उसको भारत में भेजते वैदिक स्टडीज के लिए, ओके इथोपिया होके उसको इंडिया में भेजा जाता है। ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, क्योंकि आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आप बेसिक इंटरनेट में आप पढ़ोगे उसमें आपको कुछ नहीं पता चलेगा। जी तो इसके लिए मैंने कैरेक्टर जो मैं चाह रही थी, एक ऐसा कैरेक्टर जो ह्यूमन है, जो देखे क्लियोपैट्रा को एंड हमारे मॉडर्न पर्सपेक्टिव में। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एंशियंट टाइम में देख रहे, आज मैं अगर सडनली देखेंगी तो कैसे लगेगा। तो दैट वे ही पर उसका कुछ ये नहीं है, इंटेंशन नहीं था एंशियंट इजिप्ट में जाने का। एक्चुअली वो थोड़ा मतलब होता है ना कि बस क्रेजी दीवाना टाइप था, जस्ट फॉल इन लव विद दिस गर्ल एंड विदाउट थिंकिंग एनीथिंग वो उस बीच पे घुस जाता है। ही डिडंट नो इवन कि वो टाइम ट्रैवल भी कर रहा है, बट वो देखता रहता है एंड ही वाज सो शॉक्ड कि हो क्या रहा है। देन बीच में क्या होता है कि कम बैक टू द मॉडर्न वर्ल्ड आल्सो, क्योंकि ओके कुछ रीजन के लिए आना पड़ता है उसे। हम्म, पर जब वो वापस जाता है उसको एंशियंट अलेक्जेंड्रिया और ज्यादा अच्छा लगता है, उसको लगता है कि ये वर्ल्ड ज्यादा अच्छा है मोर देन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो हाँ इसमें जो एंजाई, तो उसका एंजाई इज नॉट अ ह्यूमन, उससे ह्यूमन इमोशन होता नहीं है, बट लव, जो वो जब उसको प्यार में होती है, देन शी रियलाइज लेटर इन लाइफ कि मैं मतलब आई एम इन लव और समथिंग, शी डेवलप ह्यूमन इमोशन एंड ओके और एक लॉयल्टी। क्योंकि डिवाइन स्कॉर्पियन प्रीस्ट होते हैं जिनका यही होता है कि लॉयल होना क्वीन के लिए, एंड ही वाज आल्सो नॉट अ ह्यूमन, बट वो हमेशा रहे थे क्वीन के लिए। तो दीस आर द एस्पेक्ट्स। एंड इधर क्या होता है ना कि क्लियोपैट्रा जब जूलियस सीजर से मिलती है, शी वाज ओनली 19 ईयर ओल्ड,
एंड जूलियस सीजर वाज लाइक 52 और 54 उस टाइम। एग्जैक्ट तो पता नहीं बट इतना ही होगा एवरेज। सो उनका लव स्टोरी इतना ग्लोरीफाई नहीं किया गया कभी। इसमें एक्चुअली बताया गया कि एक्चुअली शी वाज इन लव विद हिम एंड उनका जो लव स्टोरी है। ओके हम्म। या सो देस हमारे बुक के कैरेक्टर्स हो गए, जो मेन कैरेक्टर्स। आपने प्राइस के बारे में कुछ बताया था, जो व्हाट सॉरी? वो जो प्रीस्ट थे उसके बारे में आपने बताया था। Yes, already I am. या सो उनका क्या यानी रोल है इस इन द बुक? कॉर्डियन प्रीस्ट क्या होता है ना, अगर आप जैसे गॉडेस आइसिस का रीइंकार्नेशन बोलते क्लियोपैट्रा को, उसमें कुछ कुछ स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं कि वो शक्ति की, मतलब जो हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जो शक्ति का वो रीइंकार्नेशन है। मतलब आप देखोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी भी होता है कि कहीं कुछ मिला, कहीं कुछ मूर्ति मिली। वो कैसे मिलता है? बिकॉज जो देवता देवी देवता तो हर जगह थे, बट अभी क्या है ना, 80% हिंदू इंडिया में हम जाके सनातन धर्म बोल रहे हैं। इट इज नॉट हमारा धर्म का कुछ नहीं होता, इट इज यूनिवर्सल धर्म। अभी हम लोग मान रहे हैं हिंदुस्तान में कुछ लोग, बट हिस्ट्री क्या है ना कि गॉडेस आइसिस के सामने उनकी जो वाहन बोल सकते हैं या उनके जो प्रोटेक्टर 7 स्कॉर्पियोस होते थे, उनका नाम भी बोला गया है। तो उनमें से जो मेन स्कॉर्पियो है एंड ही इज अ डिवाइन स्कॉर्पियो, कि वो कभी भी फॉर्म ले सकते हैं। एंड गॉडेस आइसिस का अभी भी उनको ये बोला जाता है कि शी इज अ लिविंग गॉडेस। मतलब हर युग में शी विल लिव एज अ लिविंग गॉडेस, एज ह्यूमन फॉर्म में, बट ह्यूमन नहीं होगी। क्योंकि आप उनको देखोगे आपको पता चलेगा कि अगर आप क्लियोपैट्रा को देखते हो तो पता चलता है कि ये नॉर्मल नहीं है, कोई दूसरी लड़की की तरह नहीं है, या उसके मतलब कुछ एक आ रहा है। तो ये था। एंड अभी भी बहुत सारे कल्ट है, क्योंकि गॉडेस आइसिस जब आई थी एंशिएंट इजिप्ट में, तब मतलब बहुत पहले की बात है, तब क्या हुआ था कि स्टिल हमारे अफगानिस्तान तक भी, इवन यूके तक भी उनको उनकी पूजा की जाती थी। मंदिर भी बने हुए थे। इफ यू सी दैट विकिपीडिया उसमें था। बट बाद में जब क्रिश्चियनिटी आया तब उन्हीं को, जो वो अपने बेटे को लेके जो रहती थी गॉड मॉडल को, उन्हीं का जो जो क्रिश्चियनिटी मदर मेरी एंड वो बातें आई वहां से, तो वो इतनी पॉपुलर थी। एंड आज के डेट में भी पॉपुलर है, क्योंकि अमेरिका में ऐसे बहुत सारे काल के गॉडेस आइसिस की पूजा करते हैं, ये करते हैं। तो दैट इज, एंड वो स्कॉर्पियन जो प्रीस्ट है वो कैरेक्टर है जो गॉडेस आइसिस की टेम्पल में वो पुजारी। ओके ये सो दैट ओके सो उसके साथ साथ में जो आपने अपनी स्टोरी में हिस्ट्री तो आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है, उसके साथ साथ में हमें अपने रोमांस को भी एंड फिक्शन को भी, जो इसका आपने कॉम्बिनेशन किया है वो रीडर्स को बहुत अच्छा लगता है। जो हमारी टीम ने भी आपके बुक्स को पढ़ा है, ठीक है, तो उस बुक को पढ़ने के बाद हमारी टीम ने आपको एक फीडबैक दिया है कि जो कॉम्बिनेशन आपने ब्लेंडिंग किया है वो बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ में आपने एक जो और बताया क्लियोपैट्रा के बारे में कि जो वो बहुत सुंदर थी, सो उसके लिए भी आपने बहुत अच्छे तरीके से जो कवर भी यूज़ किया है, फोटो जो इमेजेस आपने यूज़ किए हैं एज अ फ्रंट कवर, वो भी बहुत सुंदर बना है। और अब हम लोग आपने बोला कि इसके बारे में हम लोग नहीं जान सकते उसके फेस कैसा है, लेकिन जो आपका कवर है दैट दैट वुड बी आल्सो वेरी गुड मैम। एक्चुअली वो कवर में मेरी फोटो है, उसको कार्टूनाइज कर ओके दैट्स मतलब इस वन फोटो उसको एक्चुअली वो कुछ मिल नहीं रहा था, तो ही सेड दैट कवर फोटो लुक्स में वेरी माय गुड हस्बैंड ही डिड इट। मैम। वो एक्चुअली मेरे फोटो को जो कार्टून वर्जन में एनिमेटेड करके दिया हुआ है, ओके तो या एंड इट लुक्स वेरी गुड मैम एक्चुअली। थैंक यू। या सो दैन उसके बाद हम लोग जो आपने एक स्टोरी का प्लॉट जो कैरेक्टर्स के बारे में तो बता दिया, ठीक है, उसके साथ साथ में जब अब स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ रही है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टोरी बताते समय आप एक ऐसा स्टोरी बताएं जो सस्पेंस बना के रखे, ठीक है। सो स्टोरी किस तरह से स्टार्ट हो रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है, उसके एंडिंग क्या है, और नेक्स्ट पार्ट में कब तक हम लोग अज्यूम कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट हमको देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टोरी रहेगी कि। और उसके साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दस ये डुओलॉजी होगी या ट्रायोलॉजी का भी प्लान कर रहे हैं आप? सॉरी, जो ट्रायोलॉजी का भी प्लान कर रहे हैं कि 3 बुक्स आप पब्लिश करने वाले हैं कि जस्ट 2 पार्ट्स में एंड हो जाएगा आपका बुक? सो दिस वी आल्सो वांटेड टू नो। एक्चुअली जो ये सीरीज में है ना, बुक में एक स्पेशलिटी है, बिकॉज आई एम ए रीडर, तो मैं ये बुक जब एडिट हो गया तो मुझे बहुत बार पढ़ना पड़ा था। अब कुछ चीजें एज अ ऑथर, तो मैं जब बार बार पढ़ रही थी आई वाज नॉट फीलिंग बोर्ड ऑफ इट। इवन माय हस्बैंड आई थिंक नेवर रेड एनी नॉवेल इन हिज लाइफ। एक पढ़ा था अमित त्रिपाठी की मेघा, एंड आफ्टर दैट ही रेड माय नॉवेल। आई थिंक यू विल स्टन, ही हैड टू।
and he's a kind of person who concentration नहीं इतना, I mean for novel and all, but he read it. तब मुझे लगा कि it's so interesting, आप एक पेज आप the next page you cannot like आप ये नहीं guess नहीं कर सकते कि next क्या होने वाला है, जी तो मोनोटोनस वो बातें नहीं है। तो क्या है ना कि जो एक एक्चुअली क्या हुआ ना, मुझे पता नहीं, इट्स वेरी वियर्ड, लाइक मैं जब वो लिख रही थी ना, मुझे लग रहा था कि आई हैव टू टेल द स्टोरी एंड इट वाज नॉट इजी फॉर मी, ना आई एम अ मदर, आई हैव माय प्रोफेशन, so my daughter, she's just 3 years, and she's always like a mama's girl. So जब वो स्कूल, I mean play school में she would go, and I would write all over, this रात को लिखने के बाद दिन में भी, like I was not sleeping properly. She would come and say, mama is writing. So this, मुझे ऐसा लगता था उस टाइम कि I have to tell the story to the world, and I just wanted to see the world reaction. Because मेरी खुद की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं कैसे बोलती, मुझे बुक की तरह बोलना था, but I had to tell this story. That's the reason, I'm writing another book also, 101 ways of, to, I mean, what to say that. That's a 101 ways to detect a psycho, like this, for my subject. But वो पहले मैंने रिलीज नहीं किया, because this story I wanted to tell. क्योंकि जो जो चीजें मैंने देखी है और जो जो हुआ है हमारे साथ या मेरे आसपास के लोगों के साथ, वो इतने यूनिक थे, इवन शॉकिंग तो नहीं आ, तो मुझे लगा कि आई हैव टू टेल द स्टोरी, एंड मुझे ये जानना था कि अगर मैं ये लिखती रही तो लोग कैसे लेंगे। इसलिए वो इट्स नॉट जस्ट मिथोलॉजी और समथिंग माय फिक्शन, ऐसा नहीं है, पर मुझे तो एक जॉनरा में बोलना था ना, तो मैं क्या जी करूँ, आई हैव टू टेल दिस इज समथिंग इट्स जॉनरा में फिट होने के लिए। बट वो आप पढ़ेंगे तो हर पेज में इट्स लाइक टर्न ओवर, आपको इट्स टिपिकल नहीं है कि आपको लगेगा कि नहीं, देयर इज यू आर गोइंग इनसाइड द स्टोरी, एंड जो इंडिया के साथ कनेक्शन है स्टोरी में, वो चीज मतलब क्लियोपैट्रा, अगर वो गॉडेस, आप आपको, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, इजिप्ट में 8-10 उसकी जो टोम्ब है ना, जो मरने के बाद जो होता है, वो मिली नहीं, एंड ओके इट्स बीन ऑलमोस्ट 2000, ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स, 2800 समथिंग ईयर्स, तो वो मिली नहीं, क्योंकि कुछ अलग अलग कहानियां हैं, हर क्वीन का मिल चुकी, उनके पहले का भी बाद का भी, बट उनका मिला नहीं। ओके So they say, she didn't die there. She was not a human, to die there, So उस एस्पेक्ट में मुझे वो जो बातें मतलब थोड़े छोटे स्टोरीज है ना, उनको मुझे सिंप्लीफाई करके बोलना, बिकॉज द मूवीज वी वॉच अबाउट क्लियोपैट्रा, अभी शायद गैल गैडोट की जो मूवी आ रही है क्लियोपैट्रा, आई डोंट नो, बट ट्रेलर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, बिकॉज इट हैज दिस पोर्ट्रेइंग हर एज अ वेरी पॉजिटिव क्वीन। पहले का जो था इट वाज नॉट पॉजिटिव, लाइक एलिजाबेथ टेलर को उसमें था, उसमें जस्ट अमेरिकन स्टाइल में जस्ट डिड इट, देयर मेंटल, मूवी का तो एक तरीका बट ही हियर या या yeah, exactly. And Gal Gadot, she's an Israeli actress, so she stayed nearby Egypt. She knows many things, because आप अगर Arab में जाओगे, people will like her. And she was Greek, although she learned Egyptian language. She did many things for her people. And लोग obsessed थे, आज के टाइम में भी obsessed थे. Because I met Egyptian ambassador 2000, I think 7 में दिल्ली में. He was also obsessed about Cleopatra. हर कोई क्वीन मतलब क्लियोपैट्रा, शी इज द वन, एंड क्लियोपैट्रा मतलब जो मतलब होता है वो ग्रीक नेम है, ग्रीक मतलब होता है कि फादर्स डॉटर, फादर्स फेवरेट डॉटर। तो शी हर फादर, एक्चुअली उनके फादर का क्या होता है ना कि जनरली टॉलेमी डायनेस्टी में उस जमाने में भाई बहनों में शादी होती थी, ओके कि डायनेस्टी मूव ऑन करने के लिए, बट उनके फादर की शादी अपने बहन के साथ नहीं हुई। तो दैट्स हाउ एकदम मतलब सेपरेट होके उसका जो पूरा जो मतलब डायनेस्टी ना, वो बहुत डिफर करता है। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे रोमन एम्पायर वर वेरी लाइक पावरफुल, एंड द मेन वर लाइक दे वर लाइक साइकोस दैट टाइम, except Julius Caesar, because he was not, he was very mature and all, and he was in love with Cleopatra. And हम देखते हैं कि हिस्ट्री में देखते हैं कि वो एक बार आए मिले, ऐसा नहीं हुआ। We heard about Cleopatra कोई वॉर में जाके कि ऐसी एक लड़की है, तो we fell in love instantly. So that's how these things are there, बहुत interestingly, and like that. तो हम बाहर गए थे, शुरू में क्या है ना, वैदिक जो, इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था वैदिक स्टडीज के ऊपर, बिकॉज माई ग्रैंड मदर, आई कम फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, तो हमारे घर में दुर्गा पूजा भी होती है, इट्स बीन ऑलमोस्ट 180 ईयर्स। तो मेरी जब दादी जब जिंदा थी, शी वुड ऑलवेज रीड द वेदास, बट वो बहुत सिंप्लीफाई करके स्टोरी, आप सिंप्लीफाई करके बोलो स्टोरी, द सेम थिंग आई ट्राइड इन माई बुक, ओके कि आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड बोल रहे हो बट सिंप्लीफाई करके बोल रहे हो, सो दैट इज रिलेटेबल टू ऑल, दैट्स इट, इट्स माय ग्रैंडमास इफेक्ट यू कैन से। ओके सो दैट्स अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन। सो देन उसके साथ साथ में एक बार हमें और भी बताइएगा जो क्लियोपैट्रा है उनका रिलेशन, जो आपने इंडियन एज अ इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से आपने इंडिया के साथ भी एक रिलेशन बताया, ठीक है, तो उसके बारे में स्टोरी क्या कहती है, उसके बारे में हम लोग कुछ थोड़ा बहुत और जानना चाहेंगे हमारे रीडर्स से। ओके,
एक्चुअली डोंट कॉल इट मिथोलॉजी, आई एम सॉरी, बिकॉज़ वो जो एंशिएंट हिस्ट्री है, ओके। हिस्ट्री में क्या होता है ना, आप वेदास देखो, पुराण देखो, बेसिकली वो है क्या? जो ताल पत्र में लिखी हुई चीजें, कौन लिखता था? सेजेस लिखते थे, जो हमारे जी। ऋषि मुनि वो लिखते थे। वो क्यों लिखेंगे? बैठ के स्टोरी तो नहीं लिखेंगे ना। एंड इट्स लाइक जस्ट अ सेकेंड, ना जस्ट ओके, या। जस्ट ओके, फाइनल कर। तो उसमें क्या होता है ना, वैदिक टाइम में वो जो देखते थे, उनका जो एक्सपीरियंस होता था, वो लिख के रखते थे। तो ओके। मैं, मेरे बचपन से मैं बहुत अलग थी। मुझे जैसे हमारे जो पंडित जी आते थे, वो मेरे दादाजी के दोस्त थे। मतलब वो बहुत, मतलब ही वाज दिस भयानक कैरेक्टर। मैं भयानक इन द सेंस पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। तो उनके सामने कोई नहीं बात कर सकता था। हमारे जो दादी के घर पे आते थे, जो पैलेस में जाके पूजा होती है, तो सब लोग मुझे आके उनके पास ऐसे बैठे रहते थे। आई वॉज द ओनली वन टू क्वेश्चन कि आपने देखा भगवान का, क्यों पूजा करते हैं, क्यों माँ दुर्गा को डरेंगे? मतलब ही यूज्ड टू गेट एंग्री, कि उनके पास कोई आंसर नहीं था। बट माय ग्रैंडमा नेवर टू स्टॉप मी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी फ्रीडम दी थी कि तुम्हारा जो क्वेस्ट है उसको आप करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि माय फादर इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, बिकॉज वो पहले उन्होंने पॉलिटिक्स में भी थे, ये थे, एंड ही हैड दिस नॉलेज। तो पापा मुझे हमेशा कहते थे कि देखो, कोई भी चीज बिना सोचे बिना जाने, कोई कह रहा है आपको कि आपका धर्म मतलब हाथ जोड़ के घूंघट करके, ऐसा नहीं होगा। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई यू आर, आप हिंदू हो, आप पूजा करते हो, क्यों करो, जानना जरूरी है। तो उन्होंने मुझे एक इंसिडेंट उन्होंने बताया था। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ, रिलेटेड विद द बुक, ओके? तो या। आपको पता, आई डोंट नो, पता शायद उसमें दानिकिन करके एक रशियन फिलोसोफर थे। तो वो 1971 में वो आए थे कोलकाता यूनिवर्सिटी में। ओके। तो उन्होंने एक लेक्चर दिया था 1971 में कि आई होप आई एम राइट, 1970 में, आई एम श्योर था, क्योंकि पापा उस टाइम कॉलेज में थे, ही वाज, क्योंकि द लॉयर। तो उस टाइम उन्होंने ये बोला था कि जैसे मनागन थे लोरा इधर, कि जब औरंगजेब, उन्होंने कोशिश किया कि 10 साल से तोड़ने, जाके तोड़ने के बाद, तो कौन बनाया जाके इधर? ये तो सोचना पड़ेगा ना, सोचने वाली बात है। आप ऐसे जस्ट कुछ भी बोल नहीं सकते। नहीं बोल। तो ही से, अकॉर्डिंग टू हिम, कि जो हम जिनको देव देवी मानते, हमें कैसे पता कि देवी ऐसे दिखती है, देवता ऐसे, महादेव ऐसे ऐसे, किसी को पता है? क्योंकि दे आर द एलियंस फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। उनका जो मूर्ति से दुनिया भर में उनकी मूर्ति पाई जाती है, एंड उनको हम हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि वो अपने सुपर पावर दिखाते हैं टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड। एंड जैसे जैसे आप हमारे भी सुनेंगे अभी, कल की अवतार आने वाले, क्यों? कली राक्षस को मारने के लिए। कली कौन है? शैतान, इविल, राइट? आजकल शैतानिज्म हो गया, चर्च हो गया। तो दे से कि एक प्लैनेट ऐसा भी है जो इविल है, दे वांट टू एक्वायर द अर्थ लाइक दिस। ये दुनिया भर में चल रहा है अभी तो, बहुत सारे एविडेंस बेस्ड भी ये सब चीजें। सो उन्होंने मुझे ये समझा था, तो मुझे था कहना चाहिए कि आप, इफ यू नो इट, आपको बहुत तरीके से पता चलेगी। तो माई स्टडी वॉज नॉट रीसेंट, क्योंकि मेरा एकेडमिक स्टडीज भी चल रहा था, साथ साथ में आई वाज वेरी इंटरेस्टेड अबाउट वैदिक स्टडी। मुझे चाहिए था कि मैं जिस धर्म को मैं विश्वास करती हूँ, धर्म कोई, ये तो कोई बनाया नहीं ना, इट वाज देयर प्रेजेंट। तो मैं उस साथ साथ ग्रीक, जो, क्योंकि आर्यंस के बारे में पढ़ना शुरू किया, जी। बहुत सारी चीजें। बट ये नहीं कि मैंने एकदम उसे बिलीव किया, उन्होंने जो जो बोला। आई, आई मीन एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, कि आपको मैं बोलूंगी कि अब गर्म पानी है, आप जब तक हाथ नहीं धोगे आपको पता नहीं चलेगा, विल नॉट जी। एक्सपीरियंस इट। So like that, with evidence based, it started going on. तो मुझे तब बहुत सारी चीज, लाइफ टीचर थी, मेरी एक्सपीरियंसेस की, ऐसा होता है वैसा होता है। एंड मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ कि आई गॉट टू नो विद ट्रू, क्योंकि मैं ऐसी थी, विदाउट प्रूफ मैं बिलीव नहीं करती थी कि कोई भी चीज। जैसे स्वामी विवेकानंद की बात थी ना, कि आप जब तक देखो नहीं आप विश्वास मत करो, तो आई वॉज लाइक दैट। तब मुझे लगा कि नहीं, ये हम जो देखते हैं एंड जो होता है उसमें बहुत फर्क है। And आप अगर छोटी सी माइंड लेके आप दो चार पढ़ के आप जिंदगी ऐसे बिता दोगे कि लग्जरी, ब्रांड, दिस एंड दैट, कितना पैसा, आपको हो ही नहीं, हरी तो माया है, मतलब ये है ही नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स ऑल टाइम। फिर मुझे लगा कि भगवत गीता, आपको पता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भगवत गीता को पढ़ाया जाता है, क्योंकि जी। इट्स नॉट एट धर्म, मतलब जो, मतलब उनकी जो एसेंस है ना, उसके लिए। तो उसमें जो वो कहते हैं ना कि हर चीज डिस्टाइम है, कि आज तुम मारो या ना मारो, डिस्टाइम है। तो आज जो साइंस कहते हैं कि डिस्टाइम, जैसे इंटरस्टेलर मूवी आपने देखी कि नहीं मुझे पता नहीं, उस देखा है। मूवी में भी वही कॉन्सेप्ट था कि एवरीथिंग इज देयर ऑलरेडी। जी। जब वो साइंटिस्ट देख रहे थे उनके घर में वो जो हिल रहा था बुक के, एंड वो एक्चुअली फ्यूचर में उन्होंने देखा। जी। तो अभी क्या होता है ना, जैसे पहले एंशिएंट टाइम में पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन होता था, तो आई एम आल्सो डू दिस पास्ट लाइफ एंड फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। तो मेरे खुद के लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज, आई हैव टू टेल टू द वर्ल्ड। मैं चाहती तो मैं बहुत कुछ बोल सकती थी, बट वो बोलने से क्या होता है ना, सम पार्ट ऑफ द पीपल दे वुड कम एंड से ये तो वो है, ये तो ऐसे, दिस।
तो आई डेंट वांट दैट कॉम्प्लिकेशन, बट जो जिनका समझ है वो पढ़ने के बाद समझ जाएगा बुक क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि कभी कभी कुछ होता है, हम एनर्जी की बात करते हैं, आप किसी को देखते हो आपको पता चल जाता है कि ये तो मतलब ह्यूमन लाइफ नहीं है, दे आर इन द ह्यूमन फॉर्म बट दे आर नॉट लाइक दिस, सो इट्स अप टू द रीडर टू नो हाउ दे see it. ओके, सो दैट्स व्हाई आपने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का तरीका बुक को Thoughts and experiences, या thoughts जो and experiences. Yeah. एक्सपीरियंसेस जो आपने फेस किए, तो ये आपने बहुत डीपली हर जो पॉइंट्स है उसको एक्सप्लेन किया है अबाउट द कैरेक्टर्स एंड अबाउट द सिचुएशन, ठीक है। तो दैट्स एक्सपीरियंस इज आल्सो देयर इन द बुक, दैट्स व्हाई द रीडर्स शुड read and buy the book and read the book, and also रीडर्स को हम लोग ये सजेस्ट करेंगे कि एक बार बुक को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक बार आप बुक को पढ़ेंगे दैन एटलीस्ट आपको 2 बार 3 बार पढ़ने का मन करेगा। दैन आपको 4th एंड 5th टाइम में समझ आएगा प्रॉपर स्टोरी, दैन वो कनेक्ट होगा तो इमोशनली एंड जो इमेजिनेशन है वो और अच्छे से हमारा बिल्डअप होगा। या तो या बुक कॉपी लेके आप बुक लेके पढ़ेंगे उसका जो इफेक्ट वो ज्यादा होगा, क्योंकि कुछ कुछ होता है। मैं एक एग्जांपल दे दूं, मैंने एक बुक में आई नॉट रिटन इट, आई एम जस्ट सेइंग कि मैं इसे लिख रही हूँ कि आपको पता है कि जैसे आप धूप में जाओगे बाहर, आप बहुत ज्यादा धूप में आप जाएंगे तो बाहर आपके शरीर में जलन है, ठीक है, आप ये सकते हैं, ये तो अटक छूट है ना। फिर आपने बुक में लिखी हुई बात, आप बाहर जा रहे हो, आपको वो सेम चीजें हो रही है, तो आपने एक्सपीरियंस किया यही बुक में। ऐसे ऐसे चीजें आप एक्सपीरियंस खुद भी कर पाओगे, एंड जब खुद कर पाओगे आपको लगेगा कि या दिस इज इट इज समथिंग। तो आई नो आई हैव मच एक्सपेक्टेशन, मेरे तो एक्सपेक्टेशन बुक से बहुत ज्यादा है, होगा भी, बिकॉज आई नो दैट मैं इट ऑल अबाउट, यू नो, इट वाज डिजाइन टू मेक दिस बुक। एंड मैंने पहले ही कहा कि माँ सरस्वती के बिना हो ही नहीं सकता था, दैट्स द रीजन बुक के ऊपर भी मैंने उनका का नाम लिखा है, क्योंकि मैं टैलेंट अपने, सब लोग तारीफ कर रहे हैं बट वो तारीफ में ऐसे नहीं ले सकती, उनके दया के बिना होता ही नहीं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स दुनिया में हो चुके, बट लोगों को पढ़ने की इच्छा नहीं है। आजकल वीडियोस, ये वो मूवीज एंड फालतू, यू नो, इसी में सारे बिजी है। एंशियंट इंडिया में जो बातें थी वो बात अभी है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, लोग तो बस ऐसे जी रहे ऊपर ऊपर। वो लोग मतलब एक बुक नहीं पढ़ते, बुक तो दूर की बात है, कोई भी जो आपका जो नॉलेजेबल देखते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। ऐसे हम जैसे लोग रेयर हो चुके हैं कि हम वेदांत पढ़ते, देखते, समझते, दैट्स राइट। क्या। तो अभी तो मोस्ट ऑफ द पर्सन आर सिटिंग इन इंस्टाग्राम रील्स, सो अटेंशन स्पैम बहुत कम हो चुका है। लेकिन दिस वो तो जनरेशन है। as well, जो बुक रीडर्स भी एक तरह से इवॉल्व हो रहे हैं, लाइक हाँ, बहुत कम हो चुका है। इवन दे आर नॉट गोइंग अच्छी टू। चीजें तो कमी होती है ना, अच्छी चीजें कमी होती है, जैसे लाइक जो परसेंटेज ऑफ अच्छा ही तो कमी होगी, बट एटलीस्ट है, दैट इज द रीजन बुक रिलीज हुआ। या एंड जो समझने की इच्छा है, जिनमें इंटेलिजेंसी है, उनको समझ आएगी और वो बुक खरीदेंगे, वो जाके इंटरनेट में पढ़ेंगे नहीं ई बुक, या क्योंकि बुक खरीदना जरूरी है, व्हेन यू नो इट। क्योंकि तभी आप सपोज आपको कोई बातें याद आए, आपने बुक पढ़ी, आपको लगा कि इस लाइन के बारे में मुझे कुछ पता करना, सडनली आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप इमीडिएटली बुक में पढ़ सकते हैं, जी क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें। और ये मैं चाहती इस बुक को दूसरे तरीके से प्रमोट कर सकती थी, एविडेंस बेस्ड हो मेरे पास चीजें, बट वो मैं नहीं चाह रही थी। आई जस्ट वांटेड द रीडर्स टू हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव। मैं थोपना नहीं चाहती थी कि नहीं चलो ठीक है ये ऐसे करो, वो नहीं। इट जस्ट आई वांटेड टू सी दैट व्हाट दे फील, हाउ दे फील अबाउट इट। एंड जो रिलेवेंस जो है इंडिया के साथ वो है, वो ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट इमेजिन करके लिखा, इट वाज देयर। बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, अभी भी हो रहा है। एंड ये बुक इजिप्ट में जब ज्यादा फेमस हो रहा है, जो मैं किसी आर्कियोलॉजिस्ट को जानती हूँ, लाइक आस्किंग हाउ डू यू नो दिस, आपको कैसे पता ये चीज है, मतलब ये एक सच है, आपको कैसे पता चले, यू आर नॉट एन आर्कियोलॉजिस्ट, यू आर नॉट एन हिस्टोरियन, तो पता है अभी क्या कर सकते हैं। जी मैं बस लास्ट में एक कुछ चीजें जो होती है ना इस दुनिया में, ना एवरीथिंग इंटरकनेक्ट, आप भी सुन रहे हो, इनका इंटरकनेक्शन कुछ ना कुछ होता है। जैसे एक आप कुछ कोई भी चीज है, आप उसको समझने के लिए, जैसे मिथ या डिविनिटी बोलने के लिए, आपका माइंड में इंटरकनेक्शन होता है, आत्मा के साथ कनेक्शन बोलते हैं ना, जो आपका सबकॉन्शियस या प्योर सोल के साथ। तो व्हेन यू आर लाइक गोइंग थ्रू द बुक, वो इंटरकनेक्शन बहुत अच्छे से काम करेगा, आपका जो डीप थॉट प्रोसेस विल डेफिनेटली गो टुवर्ड द बुक, वो है। या एंड स्टोरी इज सिंपल येट अंडरस्टैंडिंग। तो जो आपने एक्सपीरियंस बोला, और एक्सपीरियंस तो आपकी बुक में हमारे रीडर्स के फीडबैक के हिसाब से पूरा दिखता है, ठीक है। जो आपने डिटेल एक्सपीरियंस जो आपने बिल्डअप किया पूरी स्टोरी को,
that's we can able to see on the book. Okay. एंड ऑल्सो उसके साथ साथ में जो आपने इंडिया का रिलेशन बताया, ठीक है, उसको भी जानने के लिए बहुत सारे रीडर्स आफ्टर दिस पॉडकास्ट वो जानना चाहेंगे, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू बाय द बुक। सो एक क्वेश्चन इसमें आएगा कि बुक को हम लोग बाय कैसे करेंगे। सो कहाँ से जैसे किसी इफ समवन वांटेड टू बाय द बुक, देन व्हाट इज द प्रोसेस टू बाय द बुक। ये अमेज़न में अवेलेबल है क्योंकि मैं चाह रही थी, मैं तो बाहर रहती हूँ इंडिया से, अभी तो amazon.com में भी अवेलेबल है। बट मैंने पहले ही कहा कि मैं भारत से दूर, बट भारत मेरे दिल से तो दूर नहीं है, और मैं चाहती थी कहीं पे भी हूँ इंडिया से ही पढ़ना है। आई वांटेड माय पीपल टू नो माय बुक फर्स्ट, उसके बाद दुनिया जाने, बट पहले इंडियन आज की जनरेशन जो भी है वो जाने। और वो नहीं भी इच्छा है तो मतलब डांट के बोलते ना कि पढ़ो और देखो, लाइक दैट। तो इसके लिए अमेज़न में अवेलेबल, आई थिंक फ्लिपकार्ट, एंड लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप शेयर कर सकते हैं। वी आर शेयरिंग द विद द पॉडकास्ट। जनरली अमेज़न डॉट, मुझे इतना पता है कि अमेज़न में है, सारे अमेज़न डॉट में भी डॉट कॉम वी हैव या पीपल आर बाइंग मोस्टली फ्रॉम अमेज़न.com या यूके में भी है, अमेज़न.co में है। तो उसमें क्या है ना, आप आई थिंक पेपर बैक लेना सबसे सही होगा, क्योंकि आप ई बुक में, मुझे ऐसे आई एम नॉट अ काइंड ऑफ एन ई बुक रीडर, मैं बुक पसंद करती हूँ, उसका जो स्मेल होता है ना कि अपना ई बुक लेके पढ़ते हैं वो चीज़ है। एंड पढ़ने के बाद आई जस्ट वांट अ रिव्यू ऑफ द पीपल, बिकॉज़ आपको लगेगा कि कुछ तो बात है, कुछ तो चल रहा है, एंड सिर्फ एक स्टोरी में चीज़ें खत्म नहीं हो जाती आपकी एक्सपीरियंस, एंड आई एम वेरी श्योर जो रीडर्स जो पढ़ेंगे, एंड आई एम, इसमें मैं कोई डाउट ही नहीं, 101% श्योर हूँ, उनके उस टाइम ही कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस उनके साथ होता रहेगा, एंड उनको ऐसा लगेगा कि कोइंसिडेंस है कि सच में हो रहा है, मतलब सच में हो रहा हो। ये चीज़ है, मुझे ये पता है। सो वैसे आपकी बुक हमें पता है कि अमेज़न पर अवेलेबल है। आपका नेम सर्च करने पर या फिर आपकी बुक का टाइटल सर्च करने पर इजीली अमेज़न पर अवेलेबल दिख रही है, पेपरबैक, ई बुक दोनों फॉर्मेट में। इवन आपकी बुक यूएसए, यूके और यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि यूएसए के भी हमारे एक ऑथर ने आपकी बुक को बाय किया है, ठीक है। रियली? नो, व्हाट इज इट? ही और शी? क्लीन वाइल ऐसे बाय करके हैं, ठीक है। तो इनको उनके साथ हम लोग बुक, यानी उनको बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सो वी आर जस्ट सजेस्टिंग द बुक, सेंडिंग द लिंक्स। सो उन्होंने बुक को बाय किया था, ठीक है। आई डोंट नो अभी उनका फीडबैक नहीं आया है, बट वो प्रॉपर हमको फीडबैक शेयर करते हैं कि मैंने इस बुक को पढ़ा, इसका फीडबैक ये, जैसे फीडबैक आएगा वी विल लेट यू नो अबाउट दिस एज वेल। प्लीज प्लीज, जरूर जरूर, आई विल बी वेरी हैप्पी सो आई फीडबैक के थिंक लिए। मे बी वो आसपास ही रहें, क्योंकि न्यूयॉर्क में ही रहते हैं वो, ठीक है। तो अच्छा अच्छा। अगर आप चाहें तो मीटअप भी कर सकते हैं उनके साथ कभी। ठीक है, कभी भी कोई ऐसी बुक रीडिंग का अगर आप कभी भी रखते हैं तो मैं जरूर, बिकॉज मुझे पहले से बता दीजिएगा, ऐसे कि मैं थोड़ा स्केड्यूल अपना ये करके, जी जी क्योंकि बुक के बारे में रिव्यू मुझे अच्छा लग रहा है जब आ रहा है ना, जो मैं चाह रही थी, जो मैं जानना चाह रही थी वही आ रहा है, एंड कुछ कुछ एक्सपीरियंस एक्चुअली है जो मैं सोच रही थी मैं बोलूंगी, पर फिर आई थोड़ा सा और मैं वेट करूंगी, देन आई टेल सम ऑफ द एक्सपीरियंस कि मैंने क्यों लिखा, रियली मैंने क्यों लिखा, जी और क्या है एग्जैक्टली बातें क्या है, लाइक दैट। एंड देयर आर सम कैरेक्टर्स, आप जहाँ पे बुक खत्म होती है ना, फर्स्ट सीरीज, वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग जैसे खत्म होती है कि आप वेट करोगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट क्या होगा, क्या होगा, मतलब वो कहाँ से ये हो रही है। वो तो वो जो हमारी टीम ने पढ़ा है उन्होंने ही बोला है कि जो आपने क्लिफ हैंगर पे जो बुक को छोड़ दिया है, ठीक है, उसके कारण ही बहुत सारे रीडर्स सेकेंड पार्ट का वेट करने वाले हैं। सो दैट इज ऑल्सो सेकंड पार्ट थोड़ा बड़ा होगा, जस्ट आई विश आई वुड एबल टू फिनिश इट ऑन टाइम। सो वो कब तक हो सकता है, जैसे हमारे रीडर्स जानना चाहेंगे कब तक रिलीज कर सकते हैं आप सेकेंड एडिशन को। तो हो जाएगा, आई थिंक एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी तो राइटर्स ब्लॉक होता है, अभी मैं एक ऐसी जगह पे स्टक हूँ, मुझे एक मतलब जो सीमलेस एक ब्लेंड होता है ना करने के लिए, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे नेक्स्ट स्टेप के लिए ना, तो मैं सोच रही हूँ उधर क्या लिखना चाहिए, तो वो एक राइटर्स ब्लॉक में मैं जा रही हूँ। तो वो होने से अभी ये जो बुक मैंने लिखी थी, जस्ट 1 मंथ आई रोट इन 1 मंथ, नॉट इवन 1 मंथ, आई थिंक 20 डेज, बहुत पहले करके, क्योंकि जब ब्लॉक नहीं होता ना, जो आई जस्ट कीप राइटिंग राइटिंग पेंटिंग, तो उसमें जो गाने भी है, आई थिंक डीप इन माय हार्ट इज द ओशन ऑफ लव, तो मेरे हस्बैंड ने उसका गाना आपसे शेयर करूंगी, गेट दिस एआई सॉन्ग, वो इतना फेमस हुआ, एंड ही लव्ड इट मोर कि आप पोएम तुम अच्छा लिखते हो ये वो करके, मैंने कहा आई जस्ट वांटेड टू कि कोई गा रहा है क्लियोपेट्रा के लिए, लाइक टिपिकल, वो तो है इंडियन में, तो बॉलीवुड वाली बात तो आएगी ना, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू लाइक पुश दिस टू सॉन्ग। आई नो इट्स टू मच बॉलीवुड इज वाइब there, but okay, Yeah, I'm an we Indian, will one time. we will add that song in this podcast as well. Okay.
सो वो उसका क्लिप हम लोग वो सॉन्ग मैं आपको दे दूंगी. इट्स लाइक बाद में लग रहा था रियली आई मेड इट, आई जस्ट वांटेड टू मेड इट ग्रीक एंशिएंट टाइम का. पर आजकल तो सब कुछ मिल जाता है इंटरनेट में, उसका भी धूम जो है ना मिल गया. तो इट इज लाइक इट्स कमिंग वेरी नाइस. कि मेरे बुक लॉन्चिंग पार्टी में भी पीपल वर जस्ट गोइंग गागा ओवर इट, इवन द द स्मॉलर लाइक यंगर जनरेशन ऑल्सो. तो लाइक दैट. एंड नेक्स्ट में भी होपफुली हो जाएगा 2 महीने के अंदर. आई एम होपिंग तो. बट इस बुक के लिए मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है. आई, मेरा जो इच्छा है बहुत ही, आई नो बहुत बोलते हैं कि आशा बहुत बड़ी चीज होती है. मुझे तो चाहिए कि बी अ मूवी इन हॉलीवुड. या मैं तो कास्टिंग के लिए भी सोच रही हूँ कि जूलियस सीजर के कैरेक्टर में टॉम क्रूज को अगर इंडिया में हुआ तो शाहरुख खान जूलियस सीजर. बट क्लियोपैट्रा कोई मिल ही नहीं रही है. Like, I'm dreaming about it, and I know it will definitely happen. So, because many people, from Egypt, they said that make this book in Arabic. आप Arabic version में इसको translate कीजिए. तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा टाइम दे दो. They want to make a movie ओके. about it. But मुझे ये चाहिए कि फर्स्ट ये हॉलीवुड में आए, अगर भगवान ठीक से है तो. नहीं तो फिर देखते क्या होता है. सो नेक्स्ट सीरीज की तरह ना, क्योंकि एक मूवी में इतना अच्छा नहीं लगेगा लाइक अ सीरीज इन नेटफ्लिक्स. तो लेट्स सी. एंड आई होप पीपल विल लाइक इट. बट क्लियोपैट्रा का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया बुक में कैसे वो दिखती थी एग्जैक्टली, या वैसे हीरोइन मिलना मुश्किल है. ये आप पढ़ोगे तो पता चलेगा. लाइक वो बहुत दिक्कत होगा. सो जो आपकी बुक आपने जो फर्स्ट बुक आपने लिखी है उसमें जो आपने मेरे से बोला कि आपने यू आर जस्ट टेकिंग 20 days 30 days टू कंप्लीट अ बुक. बट उसके पीछे जो आपने एक्सपीरियंस लगाया है, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस थे, जो आपने बचपन से अपने बुक के बारे में पढ़ा, जो आपने इंडिया में जो आपने बताया कि जो पृष्ठ थे उन्होंने सुनाते थे, वो सुना आपने, इतने सारे आपने क्वेश्चंस किए. सो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव पुट इट ऑन द बुक एंड दैट्स व्हाई इट्स जस्ट एक्सीलेंट बुक. एंड इसके साथ साथ में आपने फर्स्ट बुक को इतना अच्छा लिखा है कि यू शुड टेक अस सम टाइम टू राइट Thank द you. नेक्स्ट बुक. ओके. बिकॉज अभी हमारे रीडर्स के एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है कि आपको उसके लिए टाइम लेना पड़ेगा कि आप सेकेंड बुक को और भी नहीं जी बिल्कुल. आई ऑफ कोर्स रीडर्स कोई पढ़ रहा है मेरे बुक, मैंने कहा था पहले भी कि कोई एक भी पढ़ेगा मेरे बुक देखते, वो मेरी बहुत बड़ी बात है. Yeah. एंड आई रियली अप्रिशिएट इट. आई एम गेटिंग सम क्वेश्चंस आल्सो ना. कुछ लोग कोई बुक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस भेज रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. जस्ट टेकिंग टाइम. रात को भी शूट करने है तो I'm doing it. बेटी सोने के बाद 2 बजे 2:30 बजे I'm doing it because I'm really I'm loving it. एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है. बट आई हैव नॉट रिटन माई एक्सपीरियंस. इट्स लाइक आप कोई एंटीबायोटिक किसी दूध में मिला के किसी को दे दे. You don't know that medicine is done like that. Yeah, so if someone started a book like if someone read 10 pages of the book, then definitely he will be or she will be going to finish the book. Okay, क्योंकि 10 pages से ही people जो grab हो जाए, जो उनका attention grab हो रहा है, वो then वो जब तक बुक कंप्लीट होगा तब तक खत्म नहीं होगा. इवन उसके बाद भी खत्म नहीं होने वाला. कि जो आपने लास्ट में जो क्लिफ हैंगर छोड़ दिया है, तो उसके लिए नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए भी वेट करेंगे. जस्ट काइंड ऑफ सीरीज की सीरीज में वेट करते हैं ना. यार नहीं यार, क्योंकि लाइफ स्टोरी चल रही है ना. मतलब वो सीरीज में ये है कि क्लियोपैट्रा का वो रेंज, ये नहीं कि पांच स्टोरी नहीं बोला. मैंने ये नहीं कहा कि क्लियोपैट्रा ऐसी थी इस टाइम में ऐसी थी. एक कैरेक्टर को बोला, कैरेक्टर का स्टोरी अलग है. जी. मतलब उसमें कोई चीजें हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के साथ आप देखोगे उसमें कुछ है ही नहीं. इट्स जस्ट द स्टोरी ऑफ अ क्वीन, एंड जो क्वीन एक डिवाइन कैरेक्टर है जो हमेशा जिंदा है. एंड तो उसका स्टोरी तो चलता ही रहेगा लाइक दैट. Yeah. क्या हो रहा है अभी, लोग इंटरेस्टेड होंगे कि वो बाद में कहाँ पे आई है और कैसे. एंड हाउ डू यू नो क्लियोपैट्रा कि बाद में वो क्या है, कि किस रूप में आई है अभी हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में. जी. सो दैट इज ऑल अबाउट स्टोरी. या. सो अब हमने बहुत सारे पॉइंट्स हमारे रीडर्स के लिए रखे हैं कि व्हाई दे नीड टू रीड द बुक. एंड दैन अब हम लोग रीडर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार बुक को एटलीस्ट पढ़िए. दैन जो भी फीडबैक है उसका वो फीडबैक आप अमेजन पर दे सकते हैं डायरेक्टली. उसके साथ साथ में मैम आपकी कोई इंस्टा आईडी या ईमेल के थ्रू, जैसे इफ समवन हैव सम क्वेश्चंस अबाउट योर बुक, अबाउट द कैरेक्टर एंड एनीथिंग एल्स अबाउट द बुक, सो ओके. अब मैं आपसे शेयर कर दूंगी मेरी ईमेल आईडी, और जो मेरे एक्चुअली मेरा जो इंस्टा है जो प्रोफेशनल वन, दैट इज फॉर माय कंपनी मेंटल हेल्थ के लिए, प्रकृति लया. तो उसमें भी कर सकते, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन नहीं है. आई हैव अ वेबसाइट बट उसमें मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ. आई एम जस्ट एक्टिव ऑन इंस्टा.
So उसमें जो professional Insta में, if they are sending question, I can do a video on the Okay, questions, so and I'm doing it also. You can see. So I will send you the link. All. okay, so we will attach in this podcast. So whenever someone wanted to reach with you, they can just reach out through your mail ID or they can send a DM on your Insta. Am I right? Okay. Yeah. So this is the end of podcast. Also in our next podcast, we will discuss more about the book, like about your next planning as well, and about the specific characters we can discuss more about in the next podcast. Okay. Yeah.